morning to all respected faculty members and my volunteers present here. I, Antesh Pandey, And I, Aman Chaurasia, on behalf of CRSST, SGS Indore, welcome you all to the day 4 of the second week Atal FDP program. Aman, do you know how much important yoga is in our day-to-day life? Yes, I do, but not to that extent. Yes, and I am too eager to learn more about yoga today. So we have Dr. Nirmal Dagdi, who has been working as the Director of Academics at Shivaji Rao Kadam Group of Colleges, Indore. He has published 20 plus research papers and journals. Sir, please take over the mic and enlighten us with your experience and knowledge. A very good morning to faculty member colleagues and dear students. सुबह मुझे फ़ोन आया जैन साहब का कि आप कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे क्या कुछ अपना. वैसे मेरा प्रिपेयर्ड नहीं है. देयर मस्ट हैव फेच्ड आउट फ्रॉम लाइक इंटरनेट. बाय द वे GSITS इज़ माय सेकंड होम. शायद जितना यहाँ पे आप लोग तो बच्चे ही हैं अभी आए हैं. मैंने BE यहाँ से किया, ME यहाँ से किया, PhD यहाँ से किया. My first job was in GSITS. Stayed here for 21 years. My last assignment was as professor and head of computer engineering department. I served at that position for 7 years. और उसके बाद फिर I had an opportunity outside as a director of an institute, so I took that. GSITS में आता रहता हूँ एग्ज़ाम के लिए भी और in many ways. And this is a topic, I mean, quite away in general, like we consider away from engineering, yoga and yoga basically. Heartfulness we'll talk about later because yoga is at least one term with which we are familiar. Or with heartfulness, which is in fact one way of practicing yoga. My association with it is almost as old as my job, the career journey. जब पहले मैंने यहाँ job join किया था as a lecturer after doing BE. And in fact, we were only 12 students in computer engineering. So that was the first batch of computer engineering in GSITS. Nowhere in MP and Central India there was a program on BE computer engineering. That this was the first. IIT Bombay से अभी फाटक साहब का आपने कभी देखा होगा पेपर में फोटो पद्मश्री हैं. He was serving at IIT Bombay. He belongs to MAU and he is also Sexarian by the way. So he came here and established that department और इस तरह से it just flourished और आप देख रहे हैं आज कैसा है हमारा department. After a couple of years, maybe 1 year or 2 years, I happened to jump into this. मेरा कोई background नहीं था. So believe me, no background is needed. Okay. But what is needed is openness. Openness of heart. और मेरे बहुत करीब टॉपिक है ये और I would like to have a very informal session क्योंकि योगा पे बहुत सारा लिटरेचर है, बहुत सारे I mean India is supposed to be very rich in literature, in practice as well as what people have achieved through it. आजकल तो फिर से जब से अभी नया थोड़ा सा गवर्नमेंट आई है और फिर से योगा पे एम्फेसिस बढ़ा है. बाय द वे क्विकली हम बहुत कम लोग हैं तो आई थिंक देयर इज नो हार्म गोइंग थ्रू अ क्विक इंट्रोडक्शन और कुछ योगा से आपका क्या कनेक्ट है. बी ओपन. और मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल वे में. मैंने बिल्कुल आप देखेंगे कि एक भी श्लोका नहीं है कहीं, एक भी योगा का सूत्र नहीं है पूरे प्रेजेंटेशन में. आई ट्राइंग टू कनेक्ट इट विथ आवर ओन लाइफ. I take it as I mean this was a kind of enlightenment क्योंकि चीज़ें I mean why do you come to college? सब चीज़ें बुक्स में अवेलेबल हैं, सब चीज़ें आजकल तो इंटरनेट पे एक्सेसिबल हैं, है ना. सब बहुत आसान हो गया आजकल. Everything is available and as far as the like जहाँ तक basic discipline of engineering it's same.
nothing has changed. Things have built over the basics, fundamentals, isn't it? So that is what. लेकिन बहुत सारी चीज़ें इतनी standardized हैं, आप फिर क्यों कॉलेज आते हैं हम लोग, है ना? तो जो एक एक्सपीरियंस होता है उसकी बात अलग होती है, एंड इट डज क्लिक. जो आपको अच्छा ये थोड़ा सा टीचर्स लोग बुरा ना माने क्योंकि स्टूडेंट्स भी हैं, और जैसे मैंने कहा कि विल टॉक विद लिटिल बिट ऑफ ओपननेस, है ना, तो इसको अदरवाइज ना लें. टीचर्स भी आपको किस टीचर ने तैयारी करके आया क्लास में आपको समझ में आ जाता है. कौन से टीचर ने पहले लैब में एक्सपेरिमेंट किया हुआ है ना, और आपको गाइड कर रहे हैं, ये भी खूब समझ में आता है. बोलते नहीं है बच्चे, बोल सकते नहीं है, ठीक है ना, आपस में बात करते हैं. I mean likewise and same with parents by the way, as like हम सब छोटे से बड़े हुए हैं in family setup. हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं खूब समझ में आता है. हमें क्या बोल रहे हैं, खुद क्या कर रहे हैं. मोबाइल हमें नहीं चलाने दे रहे, खुद कितना चला रहे हैं खूब समझ में आता है ना. तो ये जो एक्सपीरियंस जो होता है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. और मेरा इंटरेस्ट है, एंड आई मीन आई टेक एवरी सच सेशन एज एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज योगा इज एन लाइक infinite journey in my opinion. This is what is being said about it, कि for human being it is the most evolved form of life, and it has the greatest potential of evolution in nature. The God has given, embedded the greatest portion. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को मान के बैठते हैं and we draw the boundary line. बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हमें एक्सप्लोर करने लायक है जीवन में. And I mean, unfortunately, or whatever you say, incidentally, the lifespan is very limited. हमारे पास तय सीमा होती है केवल. In that context, I see that ये अगर योगा प्रॉपर वे में अगर इंट्रोड्यूस हो हमें, और बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि योगा हैज़ ऑल्सो इवॉल्व like the entire इकोसिस्टम हैज़ इवॉल्व. पूरा नेचर का इवोल्यूशन का प्रोसेस जारी है. तो योगिक प्रैक्टिसेस, आई मीन एवरीथिंग हैज़ चेंज. द वे ह्यूमन रेस हैज़ डेवलप्ड, हमारी फैमिली का स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर्स, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सभी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं और चेंज होती हैं. उस कॉन्टेक्स्ट में आज, क्योंकि मेरे लिए आज क्या रेलेवेंट है, योगा पुराने मैं अगर गीता उठाता हूँ या और भी बहुत सारे हमारे यहाँ तो मतलब अनगिनत ऐसा साहित्य है, तरीके हैं बताए हुए सजेस्टेड, मेरे लिए क्या रेलेवेंट है. इज एनीथिंग यूजफुल टू मी, कैन इट होल्ड माई हैंड एंड टेक मी फॉरवर्ड. और बहुत सारी, इनफैक्ट इट इज, योगा इज ऑल अबाउट लाइफ. एक ऐसा एस्पेक्ट है हमारे लाइफ के इवोल्यूशन का. बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं बचपन से, चलना सीखा, बोलना सीखा, लोगों से मिलना जुलना सीखा, पढ़ना सीखा, बौद्धिक विकास, ऐसे बहुत सारी चीज़ें. ये क्या है डायमेंशन, व्हाट इट टॉक्स अबाउट. पहला जो हमको एक्सपोजर आता है विच इज़ वंडरफुल, आई वुड से इट एटलीस्ट क्रिएटेड द बेसिक अवेयरनेस विच वॉज वेरी एसेंशियल, बहुत ज़रूरी थी. और थैंक्स टू लाइक ऐसे हमारे बहुत सारे अभी लोग हैं इंक्लूडिंग रामदेव जी, स्वामी रामदेव, उन्होंने जो आसनास प्राणायाम और ये हमारी इसमें डेली लाइफ में इंट्रोड्यूस किया है, एंड इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड वेरी सिग्निफिकेंटली टू द ओवरऑल वेल-बीइंग, फिटनेस एंड फिजिकल हेल्थ. ऐसा कोई और एस्पेक्ट हो सकता है क्या, फिजिकल फिटनेस, इसके बियॉन्ड योगा का कोई कंट्रीब्यूशन है? मतलब आप लोग जल्दी जल्दी से नाम बता दें और थोड़ा सा तो अपन कुछ. आप कहाँ से? सर माई सेल्फ विनय मानकर, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. यहीं पे है? अच्छा. सर माई सेल्फ मनीष पांचे, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन. Myself, Mantar Singh Mandai. I am doing PhD in EC department, ENTC department. कौन है गाइड आपके? LD मालवीय सर. मालवीय, ठीक है. तो सब इन हाउस ही मामला है आज. बाहर से नहीं आए कुछ फैकल्टी में?
सर स्कूल टीचर है और उनको जैसे टाइम मिलता है अच्छा वैसे join करते ठीक ठीक इट्स ओके। अदिति My name is Aditi Agrawal and I am a final year electrical engineering student. कुछ योगा होगा कुछ किया है आपने कहा ना इंटरेस्टेड हूँ मैं क्या करते हो? Sir, I have done yoga for about 4-5 months and I have done asanas, pranayam, even kriyas also. अच्छा तो कोई पर्टिकुलर सिस्टम फॉलो करते हैं आप या हाउ डू यू डू दैट? No sir, there is a charity hospital Mother Shrishti in Indore, so Mhm. they teach yoga, so I go there. वेरी नाइस। So my name is Bhagyashree Solbusle. I am from Bethel, second year in EC. कुछ किया है योगा वगैरह? Yes sir, मैं daily मतलब daily तो नहीं करती, आसन मैंने किया। प्राणायाम वगैरह करते हैं? जी सर। नाइस। एनीथिंग बियॉन्ड दैट? बियॉन्ड मतलब इन एडिशन ऐसा? मतलब मुझे थोड़ा जिम्नास्टिक में इंटरेस्ट है, लेकिन अभी वो थोड़ा हो नहीं पा ओके सर नाइस थैंक यू। My name is Devyani Vidaki. I am a second year EC student. My name is Bhumi Kabra and I am a second year electronics and telecommunication student. तो कुछ योगा वगैरह से कनेक्ट नहीं? Yeah sir. मतलब स्कूल टाइम में किया था और अभी भी मैं कभी-कभी सदगुरु को फॉलो करती हूँ. अच्छा ईशा योगा। Yes. Good morning, sir. I am Antish Pandey from electrical department, third year. So I do not do yoga that much. It's okay, it's okay. Sir, I am Aman Chaurasia, same from third year Third year electrical electrical. department. I only do Anulom Vilom sometimes. अच्छा Yeah. गुड गुड गुड। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरा नाम अमित नाइक है। मैं यहाँ पढ़ाता हूँ टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में और योगा कभी नहीं किया सर। नहीं किया अच्छा नहीं, कोई बात नहीं। एक दिन ऐसा था ना हमने भी नहीं किया था तब। आई वाज आल्सो लेक्चरर हियर और उसमें कोई ऐसी बात नहीं। सो एक छोटी सी मैं अपने क्योंकि कॉमन ये है ना हम राइट सब वर्ड इज योग और योगा। अब ये है ना वो धर्म धर्मा वो ए लगा देते हैं इंग्लिश में। अपन लेट अस नॉट बॉदर अबाउट दैट, लेट अस वरी अबाउट व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय दैट है क्या है। हिंदी में योग लिखते हैं, देयर इज नो डाउट। अंग्रेजी में बोलते हैं तो योगा बोल देते हैं, है ना। इट हार्डली मैटर। अपन तो मिक्स चलेंगे, बिल्कुल मालवा के लोग हैं, कोई नो प्रॉब्लम्स। आई एम इंटरेस्टेड इन द क्रक्स ऑफ द इशू, बाकी क्या करना है। एक छोटा सा मैं इंसिडेंस बताता हूँ क्योंकि आई गॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद व्हेन लाइक क्योंकि टीचर तो था ही मैं और इट वाज ऑलमोस्ट एक्सीडेंटल। मेरा भी जो लाइक एसोसिएशन विद हार्टफुलनेस वो ऑलमोस्ट लाइक एक्सीडेंटल क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कभी कुछ, बल्कि मेरा तो थोड़ा सा रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी उतना विश्वास नहीं था समहाउ। मुझे लगता था कि ये करते कुछ है और मंदिर से बाहर आए और कुछ होता ही है, मतलब कुछ तालमेल दिखता नहीं इनके कहने में और करने में समहाउ। सो आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड बाय दैट एट ऑल। तो मुझे ये लगता था गुरुज और ये बहुत सारा शो ऑफ है, दिखावा है, मन में कुछ और रहता है, दिल में कुछ और बात रहती है, बाहर बताते हैं दूसरों को और कुछ है। तो मेरा कोई भरोसा था नहीं ऐसा। और somehow मतलब ये गुरु मतलब एज ए टीचर ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, अपने को करना रहता है सब, है ना। टीचर समय पे मदद कर दे बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा मेरा भी एक्सीडेंटली था एक तरह से एक्सपोजर। तो मेरा ये जो पहले जिनसे मैंने ट्रेनिंग लिया इसका वो थे मैथमेटिक्स के टीचर। मैथमेटिशियंस यू नो हाउ लाइक दे आर वेरी टिपिकल पीपल नो, बाइनरी वाले रहते हैं, बिल्कुल लॉजिक स्टॉन्च लॉजिशियंस। और वो एमएससी की क्लासेस लेते थे और मैथमेटिक्स मतलब इंजीनियरिंग से कम लाख गुना टफ होता है टू बी वेरी ट्रू। मैंने कुछ महीने बीएससी क्योंकि पीईटी की पहली बैच थी हम लोगों की और तब मतलब इट वाज इन द एयर बट वी वर नॉट वेरी श्योर वेदर दैट एग्जाम वुड बी कंडक्टेड और नॉट। तो हम लोगों ने फिर होलकर कॉलेज में बीएससी में एडमिशन ले लिया और जब हमने वो मैथमेटिक्स और वो केमिस्ट्री फिजिक्स देखा तो हमने कहा अल्लाह बचाए, इससे बहुत मुश्किल है ये करना। तो रियली वेरी वेरी टफ मैं बता रहा हूँ। इंजीनियरिंग तो ऐसे कर लेते हो आप लोग एंड मैथमेटिक्स इज नो जोक एट ऑल, लाइक सच में बहुत अच्छा। तो वो क्या एमएससी की ये क्लासेस लेते थे और उन्होंने एक बहुत सुंदर इंसिडेंस बताया विच टच्ड मी अ लॉट कि एक ग्रुप था बच्चों का, वैसे मैथमेटिक्स में बहुत कम ही बच्चे एडमिशन लेते थे और जो सच में जिनको मालूम था कि हाँ कुछ
ताकत है उनमें, दम है कि वो कर लेंगे मैथमेटिक्स, वही एडमिशन लेते थे। तो एमएससी में उन्होंने एडमिशन ले लिया। वैसा प्रीवियस और फाइनल पहले ईयरली सिस्टम हुआ करता था। और एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे थे, वेरी टैलेंटेड और पढ़ते थे, तो उनका प्रीवियस हो गया। और फाइनल इज एक्सट्रीमली टफ। प्रीवियस और फाइनल में बहुत डिफरेंस होता है। प्रीवियस तो काफ़ी लोग कर लेते, फाइनल में अच्छों को पसीने आ जाता था। तो अब ये बच्चे, क्या होता है जब आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी हुआ होगा कि जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो जिसको कहते हैं ना, वहाँ की हवा लग जाती है ना। तो बच्चे बाहर से आए थे, 1 साल हो गया, और फिर जिसको कहते हैं थोड़ी सी बाहर की हवा लग गई उनको। अच्छा, और ये बहुत सिंसियर टीचर थे, बहुत अच्छे इंसान भी थे। उनको मालूम था कि ये इतने आसानी से होगा नहीं, तो वो बच्चों को खूब बच्चे हवा लग गई, मतलब आपको मालूम है कि पढ़ाई में से थोड़ी सी रुचि कम हो गई, है ना। और वो बहुत टफ टॉपिक्स होते हैं, और जब तक कि एंड इट प्रोग्रेस इज सो फास्ट। उस जमाने में तो आपके यहाँ अभी तो बहुत पैटर्न ऑफ एजुकेशन में बहुत फ़र्क आ गया। वहाँ पे मतलब एजुकेशन वाज सो डिसिप्लिन, मतलब वेरी सिस्टमेटिक, वेरी रेगुलर, सब चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिकली होती थी। अब वो बच्चे पढ़ाई ना करें, बहुत टफ टॉपिक्स, खूब बार बार कहते थे कि बेटा बाद में होगा नहीं, कर लो अभी। अब उन्होंने नहीं माना। फिर परीक्षा का समय आया। अब क्या करें, तो आपको मालूम है इंजीनियरिंग में तो बहुत कॉमन है कि पीएल में पढ़ के पास हो जाते हैं। एमएससी में इट्स इम्पॉसिबल, सिंपली इम्पॉसिबल। और वो बच्चे रात रात को जग के और कोशिश करें, बट दे कुड नॉट कोप अप विद द गैप। वो इतने गैप हो गया था कि अब वो क्या करें। वो जब पढ़ाई के लिए बैठते तो खूब टेंशन, अरे यार ये क्या कैसे होगा अपने से। अब वो इतना टेंशन होता था, अब वो टेंशन दूर करने के लिए क्या करें, पढ़ के तो पॉसिबल ही नहीं है, अब एफर्ट्स लगा के संभव नहीं है। लो प्रेशर खूब कि यार कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कल एग्जाम है। तो इसमें सबसे अच्छा जो एस्केप होता है वो क्या होता है, सबसे आखिरी में देखो क्या लिखा है, मूवी। तो उस समय तो, अभी तो आपको बहुत इस पे देख लेते हो आप मोबाइल पे और इसमें, उस समय तो टॉकीज जाना पड़ता था। अब ग्रुप भी था उनका, अब सब कहाँ गए मूवी उनने कहा अब जो होगा सो होगा एग्जाम में, चलो अपन तो अभी तो टेंशन रिलीव हो, नहीं तो वो बैठे तो सब चीज़ें बड़ी मुश्किल, क्योंकि कुछ हो नहीं पा रहा था। अब मूवी देखने गए साहब, मूवी में बैठे। अब ये उन्होंने मुझे बताया कि बच्चों ने आके उनको बाद में ये बताया कि सर क्या हुआ हमारा। अब वो मूवी में बैठे साहब और बढ़िया वहाँ पे डांस वगैरह गाना वाना खूब चालू हुआ उधर, और उनको वो हीरो हीरोइन की बजाय वहाँ पे पॉलिनॉमियल इक्वेशन, मैट्राइसेस, थ्योरम, स्कॉलरी, वो सब स्क्रीन पे दिखे। है ना। अब क्योंकि वो टेंशन है अंदर, तो मालूम है उसको कि कल तो मुझे लिखना है, अब वो वहाँ ध्यान नहीं लगता है उसमें। एंजॉय, जब वहाँ पे मन टिके, ध्यान टिके, तब तो कुछ आप और एंजॉयमेंट, मतलब ये जो सबसे सिंपल डेफिनेशन ये है, जब आप बिल्कुल उसमें खो जाते हैं, मन लग जाता है, देयर इज नो अदर थिंग टू डिस्टर्ब यू एक्सेप्ट दैट टास्क व्हिच यू आर परफॉर्मिंग, तो ही वो आपको मजा देता है, आनंद देता है, ये अच्छा लगता है। इट्स एज सिंपल एज दिस, वॉट एवर यू आर डूइंग इन लाइफ, अगर मन उसमें पूरा आपका लग गया विद फुल अटेंशन, बल्कि क्या होता है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि जब पूरी तरह से हम इस तरह से फोकस हो जाते हैं, वेरी इजीली यू आर एबल टू इग्नोर एवरीथिंग एल्स आउटसाइड। वो बैंड बाजा सब शहर पर निकल जाएगा, आपको अगर उसमें मन लगा हुआ है, नथिंग डिस्टर्ब्स। पूछता है वो, अरे मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। और जब मन नहीं लगता है, एवरी स्मॉल थिंग क्रिएट्स डिस्टर्बेंस फॉर यू।
अब ये क्यों हुआ ऐसा? टेल मी द रीजन। सब बच्चे हो, सब आप लोग सब कभी ना कभी लिखा है एवरीवन। मुझे नहीं लगता कि कोई बचा होगा इससे। वेरी कॉमन एक्सपीरियंस। यस, थोड़ा लेट अस बी इंटरेक्टिव। अभी कोई परीक्षा भी नहीं है अपनी, कोई पास फेल होना नहीं किसी को। जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, यू कैन फ्रीली एक्सप्रेस एंड वी कैन इंटरेक्ट। लेट इट बी इंटरेक्टिव। शायद मुझे भी थोड़ी सी लर्निंग का फिर कुछ आपकी तरफ से आएगा तो इट विल ऐड। यस, अच्छा मूवी तो देखना नेचुरली ना पसंद ही आता है, उसमें कुछ रिलैक्सिंग है, उसमें कुछ वैसे अपना कुछ करना नहीं है, नथिंग इज एट स्टेक, जस्ट सिंपली पास योर टाइम, एंजॉय। डिस्कॉर्ड, दिल कुछ कहता है और माइंड कुछ और। हाउ मच डू यू एग्री और डिसएग्री? Actually, our life is more governed by our heart than by. तो टेंशन जो आता है, इट्स रिजल्ट ऑफ धक 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 सब धड़कन बढ़ जाती है एकदम से, है ना? बार बार पानी पिएंगे फिर दिमाग काम करता है, इसको कैसे दूर करना है, इसको व्हाट शुड आई डू? तो एक उत्तर आया कि जो पॉसिबल मूवी इज लाइक वन पॉसिबल वे, लेकिन वो मूवी में ध्यान लगा रहे हैं, मालूम है कि ये पिताजी ने बड़ी मेहनत से फीस भरी है, अपन ने भी हिम्मत करके एमएससी में एडमिशन लिया है मैथमेटिक्स में, और अगर नहीं हुआ तो नो फ्यूचर अहेड। अब वो कैसे मन लगे वहां पे? वो फोकस कर तो रहे, लेकिन इन शॉर्ट अगर इफ योगा मतलब एक प्रैक्टिकल वे में अगर अपन देखना चाहें तो दिस इज व्हाट इट एड्रेसेस। प्रॉब्लम क्या है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने बहुत ही एक जिसको कहते हैं ना एक कन्वेंशनल क्लासिकल वे में जब उसका इंट्रोडक्शन होता है तो वी आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट। अब मैं 10 अगर आपके सामने अभी श्लोकास लिखता और कुछ बातें शायद ये सब चीजें आपको बहुत जगह इसका रेफरेंस मिलेगा, लेकिन वो संस्कृत में होता है और इतना क्लिष्ट होता है, उसमें बहुत सारी चीजें टर्मिनोलॉजी उसकी इज नॉट लाइक वी आर नॉट सो एक्स्टम्ड टू इट, तो इतना हमको अपील नहीं करती, क्लिक नहीं करती। सब जगह लिखा हुआ है, सब जगह। इनफैक्ट दिस इज व्हाट इट ट्राइज टू एड्रेस। अच्छा, अब जैसा इंजीनियरिंग में हम कहते हैं ना कि अगर हम लाइक इफ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, इंजीनियर्स आर बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्वर्स। If you attempt any problem given to you, it is said that if you understand the problem properly, your half work is done. The same is true everywhere. It's true here also. Why this discord? Why this conflict? अगर आपके अंदर किसी भी इश्यू को लेके कॉन्फ्लिक्ट है, ये आपको it will make you, it is bound to make you restless. अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर आ गया, करना है कुछ और दिल कुछ और चाहता है, आप मान के चलें कि आपको परेशान होना ही पड़ेगा। And I would like to add one thing after so many years of my experience. बहुत सारे हमको लाइफ कोचेस मिलेंगे, बहुत सारी एडवाइसेस मिलेगी, बहुत सारे सरमन्स मिलेंगे, बहुत तरीके बताते हैं लोग हमको,
बट इट इज इजीली सेड देन डन। बहुत आसान है उसके बारे में बात करना, इसको कर पाना बहुत 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 मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कितने हम न्यू ईयर रिजॉल्व लेते हैं, कितने दिन चलते हैं? नहीं, अब ये तो आदत है, हम ठीक करके ही रहेंगे, ये तो हम जरूर अचीव करेंगे। होता नहीं। क्यों नहीं होता है? Impressions resulting into compulsion। इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम प्रॉब्लम को समझ लें। अब ये इंप्रेशंस मतलब क्या बात? ये जो मन है हमारा, दिस इज सेंसिटिव सिस्टम। जैसे फिजिकल हमारा सिस्टम होता है, वैसे ही हमारा एक सेंसिटिव मेकअप भी है। आप जिस भी चीज से जुड़ते हैं, जिस भी, अच्छा बुरा नहीं कह रहा मैं, एवरीथिंग, एनीथिंग, इट क्रिएट्स एन इंप्रेशन ऑन अवर माइंड। इट इज एन इम्प्रिंट। वो बात आपके अंदर छप जाती है, और जितना रिपीटिशन इसका होता है उतनी वो गहरी होती जाती है। स्ट्रॉन्गर द इंप्रेशन बिकम्स। और धीरे धीरे, आई मीन दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन आवर ओन लाइफ। आई एम नॉट स्टेटिंग एनीथिंग, कुछ बहुत ऐसी चीजें। फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये जब इंप्रेशन इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, दे स्टार्ट ड्राइविंग अस। डू यू एग्री विद दिस? छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं, and I hope like somebody would augment it by one more incidence or example। इतनी मैं फिजिकल लेवल का देता हूँ जो कि सबने हमने ऑब्जर्व किया हुआ है। आजकल बहुत कॉमन है ड्रिंक्स और ये सब चीजें, स्मोकिंग। और बिलीव मी, फर्स्ट एक्सपीरियंस आप स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं, it is not tasteful, it is not palatable at all। वो कभी भी अच्छा लगने वाला नहीं होता, कभी भी। अब जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको हम अगर कुछ बिटर चीज दे देंगे, कड़वी चीज कुछ दे देंगे, तो कैसा मुंह बनाता है वो, है ना? दिस इज बाय लाइक नेचर। उसको कुछ ऐसा हमने सिखाया, उसको तो कुछ भी नहीं मालूम है, गोदी में है बच्चा, इन्फेंट। लेकिन आप ये और मीठा दे दीजिए तो इट इज सो पैलेटेबल, उसको स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट्स इट विदाउट रेजिस्टेंस। क्यों? ये दिस इज माय नेचुरल रेस्पॉन्स। फिजिकल लेवल पे नेचुरल रेस्पॉन्स है ऐसा। ये जब हम अगेंस्ट नेचुरल रेस्पॉन्स उसको थोड़े दिन करते हैं, फिर क्या हो जाता है? अब नाउ यू ऑल नो कि आजकल कितनी बड़ी समस्या है ड्रंकर्ड्स के लिए। दे स्पॉइल देयर लाइफ। रिहैबिलिटेशन कैंप में जाना पड़ता है, और बहुत बहुत टफ लाइफ हो जाती है फॉर देम, फॉर फैमिली, इवन फॉर डॉक्टर्स, दोज हु ट्रीट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल सच पीपल, वेरी, क्योंकि कंपल्शन बिकम्स सो स्ट्रॉन्ग। और मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ, सच बात है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे केसेस रियल लाइफ में साथ में आए, मतलब सामने आए हैं, कि उसके बाद वो चाहता है इंसान कि यार ये किसी तरह से इससे मुझे छुट्टी मिल जाए, क्योंकि इतनी तकलीफ उसको, इतनी तकलीफ, बहुत कष्ट। इट लिटरली ruins देयर लाइफ, और वो छुटकारा चाहता है इससे। लेकिन बिलीव मी, इसीलिए रिहैबिलिटेशन कैंप बनाना पड़ते हैं, उससे बनता नहीं है। मतलब आप देखिए कैसे हम किसी चीज के टच में आए, धीरे 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 उसने हम पे ग्रिप बना ली। दिस इज द रीजन वी हैव टू बी लिटिल कॉशियस। और शुरुआत में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि it accelerates so fast in the negative direction, in the downward direction, it becomes very difficult.
एनीवे, इज देयर एनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन टू दिस? प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई किया हमने, है ना, इसकी बात करेंगे बाद में थोड़ा सा। एक और मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि शायद इसकी कितनी सीवियरिटी, जस्ट थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया। एक लाइव एग्जांपल्स होते हैं तो कुछ चीज़ें जो फर्स्ट हैंड हमारे सामने आती हैं। एक बार मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, क्योंकि आजकल नेगेटिव न्यूज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं, बट आई हैपन टू लाइक रीड गो थ्रू दैनिक भास्कर वंस, और समहाउ उसके फ्रंट पेज पे टॉप राइट कॉलम पे एक न्यूज़ थी, और न्यूज़ ये थी कि हरिद्वार का इंसिडेंस। एक यंग कपल, न्यूली मैरिड, कुछ महीने हुए थे उनके शादी को, और द हस्बैंड थ्रू हिज वाइफ इनटू गंगा। वो कौन सा पुल है वहाँ पे, उसमें गए और उसको उसने पुल से धक्का दे दिया। मतलब इसीलिए फ्रंट पेज न्यूज़ बनी थी वो। और एक और रीज़न था उसका, वो क्योंकि फिर मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट इसलिए आया कि दैट कपल बिलोंग टू उज्जैन। उज्जैन की न्यूज़ थी। और वहाँ साहब उनसे पूछा कि मतलब ये अच्छा फिर सामने कैसे आए, तो बाय गॉड्स ग्रेस दैट लेडी सर्वाइव। कुछ ऐसा 5 किलोमीटर तक हर बॉडी फ्लोटेड एंड देन समहाउ इट टच्ड दी शोर्स, और वहाँ पे फिर उसको बचा लिया गया। तब जाके ये पूरा सब इंसिडेंस ओपन हुआ। इसमें जो मुद्दे की बात है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब उनकी स्टोरी में तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा, तो दोनों ने अपनी फैमिली विश के अगेंस्ट लव मैरिज की थी। दोनों ने अपना घर छोड़ दिया था, क्योंकि दोनों के पेरेंट्स दे वर नॉट इन एग्रीमेंट विद द मैरिज। और ऐसा जब मतलब इसको मैं थोड़ा सा उस तरह से रखूं तो बोथ वर रेडी टू, मतलब वो दुनिया को आग लगाने को तैयार थे एक दूसरे के लिए, है ना। और ऐसा क्या हो गया भाई थोड़े से महीनों में कि हस्बैंड अब उसको आग लगाने को तैयार, उसको नहीं चाहिए। What kind of conflict is this? And they did it. मतलब ये रियल स्टोरी है, इसलिए मुझे वो याद हो गई। मैंने कहा ये वो व्हाट द हेल दिस इज। मतलब जो लव मैरिज अपने पूरे सब संसार छोड़ के, बाकी के रिलेशंस, फैमिली सब छोड़ के उन एक्सेप्ट किया उन्होंने, घर से दूर रहे, मुश्किलें भी उठाई होगी, सब हुआ होगा, फिर ऐसा कुछ महीनों में क्या हो गया कि सब चीजें टॉप से बिल्कुल बदल गई। अब उसको वो नहीं चाहिए दुनिया में। सो रिडिकुलस बट सो ट्रेजिक एट द सेम टाइम। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इंटरनल, these are the repercussions. Can this be managed? Can this be handled? This is the issue. In fact, if our ancient yogic system, जितना भी हमारा योगिक नॉलेज है, रियली अगर कुछ उसका बात थी तो इट स्टार्टेड हियर। आई मीन देयर इज वन मोर स्टेज अहेड, लेकिन ये उसका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। हम ध्यान की बात करते हैं, है ना। इट इज यूजिंग आवर माइंड, दिस हार्ट माइंड कॉन्ग्लोमरेट, ये दोनों को हम साथ में यूज करते हैं। हमारे सेंसिटिव सिस्टम है, उसको यूज करना सिखाते हैं। इट्स समथिंग टू लर्न, एंड बिलीव मी इट कैन बी लर्न। ऐसे ही लोहा नहीं मानते इंडिया का। हम अपने आप को इतनी आसानी से ऐसा विश्व गुरु बनने की बात नहीं कर सकते अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है। And if these scriptures, these systems have lived for thousands of years, इसके पीछे कोई बहुत significant बात है। Okay, how much time? क्योंकि हमको एक जो सबसे important चीज़ है, आपने भी पूछना ही चाहिए कि सर इतनी बात की
कुछ हमें बताएंगे भी क्या, है ना, करके समथिंग टैंजिबल एज ए हेल्प। अभी है टाइम अपने पास थोड़ा सा, तो अपन जरूर करेंगे, विल कम डाउन टू दैट, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड पहले ये थोड़ा सा क्या है, और जिसके बारे में मैं थोड़ा जानता हूँ दैट आई शेयर दी हार्टफुलनेस, है ना। क्या क्लासिकल योगा के बारे में कितना लोगों ने सुना है, समझा कभी कुछ? Anybody who has at least studied or like कभी नहीं? अच्छा, सब्जेक्ट इन स्कूल योगा। ठीक है। उसमें कुछ इस तरह की चीज आई थी क्या? अभी नॉर्मली प्राणायाम तक तो सभी लोग हम कर रही हैं आजकल, है ना। इट्स गुड, लाइक एटलीस्ट हमको एक स्टार्ट तो मिल गया। सो यम नियम आसन प्राणायाम, इसके बाद का जो है प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसको अष्टांग राजयोग बोलते हैं। इसके 8 अंग हैं, इसलिए अष्टांग राजयोग बोला जाता है उसको। अब सबसे बड़ा जो इसमें दिक्कत थी वो मैंने लिखी भी है कि पहले अगर आपको ये योगिक प्रैक्टिसेस, अगर आपको इफ यू वांट टू फॉलो इट इन योर डेली कोर, दैट वाज नॉट पॉसिबल एज अ हाउस होल्डर। फैमिली लाइफ में संभव नहीं होता था। ये एक्चुअली वो उस समय का सिस्टम था, उस तरह की सेटअप। जैसे मैंने कहा कि चीज़ें इवॉल्व होती हैं, चेंज होती हैं विद टाइम, तो आई मीन नॉट टू ब्लेम देम, ओके। ये उस फॉर्म में था उस समय, और लोगों ने उसका यूज़ किया, उसका बहुत बड़े बड़े विवेकानंद साहब इज जस्ट वन, हम जिनके बारे में जानते हैं। ही वॉज अ योगी, जो रामकृष्ण परमहंस के उनके गुरु थे, और फिर उसमें जो उन्होंने अटेंड किया, उनके पास कुछ था, इसलिए दुनिया ने उनको सराहा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी? रिनंसिएशन ऑफ फैमिली एंड सोशल लाइफ। आपको कट ऑफ होके बाहर जाके ही वो प्रैक्टिसेस कर पाते थे। उसका वन ऑफ द रीजंस इज, जो अभी हमने थोड़ी बात भी की है, कि इंप्रेशन में गैदर कैसे करता हूँ। मैं वायलेंस देखता हूँ तो कुछ गैदर करता हूँ, अच्छी चीज़ देखता हूँ शायद, और भी कोई किसी कंपैशन, कोई किसी का एक्ट ऑफ कंसर्न, वो भी मुझे प्रभावित करता है। लेकिन एनी काइंड ऑफ, उनका ये कहना है कि अभी भी जो हमारा माइंड है, जैसा हमको नेचर ने, ये योग के पीछे जो बात है, व्हाट वी वांट टू अचीव इट is bring that instrument in its original and perfect condition. If mind has a bias, if mind has an inertia, तो कभी भी मैं चीज जैसी है वैसी मुझे मिलेगी नहीं, दिखेगी नहीं, because that bias acts. एक अंदर से जो accumulated मेरे अंदर है, वो it generates a response. This is the I mean this is how our system is. इसमें कोई अच्छी बुरा ये वो नहीं बात. I mean that is why I said we need to openly like just see ourselves. How does this system function? होता कैसे है? तो ये पहले से ट्रिगर हो जाता है response. And that is what gives you a bias. Because it is preconditioned. योगा का जो अटेम्प्ट था, क्लियर इट ऑफ, फिर शायद हमको कुछ चीज जैसी है वैसी दिखना शुरू होगी। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर हम रोज इतने इंप्रेशंस गैदर करते रहेंगे तो काम होगा कैसे हमारा? दैट वाज द इशू। इसलिए वो सेक्लूडेड लाइफ वाज प्रेस्क्राइब्ड, और कोई रीजन नहीं उसमें कुछ कि वो बहुत सैंक्टिफाइड लाइफ है और ऐसा वैसा नहीं। ऋषि मुनि भी हमारे जंगल में जाते थे, बहुत से ऋषि मुनियों की पत्नियां होती थी और उनका वहाँ पे रहते थे, लेकिन इन जनरल इंटरेक्शन या हमारे मन का कम से कम हो, दैट वाज द लाइक आइडिया बिहाइंड इट। और सीवियर ऑस्टियरिटी इतना आसान नहीं था हर किसी के लिए, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तब बोलते थे उसको, मतलब आपको बताओ इतना कठिन होता था कि मतलब मैं तो एटलीस्ट सोच भी नहीं सकता।
ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस आपको पढ़ने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे कि जैसे कोई शिष्य बनने जाता था गुरु के पास वहाँ पर आश्रम पे जंगल में, तो 10 साल 12 साल तो गुरु उससे क्या करवाता था, आश्रम की सफाई करो, जंगल से लकड़ियाँ बीन के लाओ, है ना, कुछ नहीं, कोई उसको आगे कोई प्रैक्टिस, नथिंग डूइंग, जैसा गुरु ने बोला वैसा मुझे करना। इतना डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ता था। इट वाज रियली वेरी टफ एंड दैट वाज ओनली पॉसिबल लाइक आउट ऑफ योर फैमिली लाइफ, बाहर जाके ही कुछ संभव हो पाता था। तो दिस वाज अ बिग बॉटलनेक। एक बार मैं जस्ट लाइक टू मेक थिंग्स लाइट, नहीं तो मैं बहुत दिन से बोलती हूँ, आप लोग कम बोलते हो, थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट कर सकते हो, कुछ भी आपको लगे, मन में बात आए कि नहीं मैंने ऐसा सुना है, मैंने, क्योंकि आई मीन वन साइडेड कोई ऐसी बात नहीं उसमें, है ना, तो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके सामने बस केवल रख रहा हूँ। और एक बार विवेकानंद साहब से ऐसी कोई जिसको ऐसी जिज्ञासा हुई और वो उनके पास गया और उनसे पूछा कि साहब आप तो केसरिया पहना दोगे जब हम कहेंगे कि ये हमको करना है योग प्रैक्टिसेस, इसमें एंटर होना है, तो प्री कंडीशन इज दैट यू रिनशिएट द वर्ड। तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उनसे पूछा था कि अच्छा आप मुझे एक चीज़ बताइए कि ऐसे अगर दुनिया के सब लोग, आपके पास सोल्यूशन है, यही आप कहते हो कि जीवन में, एज एंड व्हेन दे से कभी भी अपन ब्रेक कब रखना है, टाइम डिसाइड करो, 11 बजे क्या करना, चाय में पिलाओगे? अच्छा वहाँ पे चाय पीने आते हैं, मैं थोड़ा सा लाइक कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, वहाँ पे हम ऑफ कर आते हैं, चलेगा ना 5-10 मिनट? यस। ओके। तो विवेकानंद साहब से उन्होंने कहा कि साहब अगर ये जितने धरती पे अभी लोग हैं, ये सब आपका अगर बात मान के और सब अगर फैमिली लाइफ छोड़ देंगे, सोशल लाइफ छोड़ देंगे, तो दुनिया चलेगी कैसे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वैलिड वन ऑल्सो। क्या जवाब दिया होगा विवेकानंद साहब? Can anybody make a guess? वैलिड क्वेश्चन कि साहब आप कह रहे हो कि ये सब छोड़ के आओ, केसरिया पहन लो, तब आपका काम शुरू होगा, तब मैं गाइड करूँगा, बताऊँगा क्या करना है। ऐसे उसने कहा साहब ऐसे सभी लोग अगर ये आपकी बात मान के और छोड़ देंगे तो दुनिया का क्या होगा? तो विवेकानंद साहब ने क्या जवाब दिया होगा? कुछ गेस करना चाहेंगे? वेरी लाइक वो कठिन रास्ता है, सब लोग नहीं चल सकते रास्ते पे लाइक दैट, क्वाइट क्लोज टू दिस, क्वाइट क्लोज। उन्होंने कहा देखो तुम्हारे मन में ये बात आ गई है ना, ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल मैन। उन्होंने कहा तुम कर लो, क्योंकि तुम्हारा ही मन कब बदल जाएगा पता नहीं। और रही दुनिया की बात, तो तुम दुनिया की चिंता मत करो, दुनिया को चलाने वाला कोई और है। और इतने सालों से चल रहा है। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी टफ, दैट इज वॉट इट मेंट एक्चुअली। उसके पीछे बात थी कि आप चिंता मत करो, जैसे आपने भी कहा कि इट वॉज सो टफ। ऐसे हजारों लोग जिनके मन में ये बात आती थी, उसमें से कुछ एक लोग इसको अडॉप्ट करते थे, फॉलो करते थे। ऐसे कुछ जो चलते थे उसमें से बहुत सारे आउट हो जाते थे बीच में। ऐसे जो बहुत सिंसियरली करते थे उनको, मतलब इट वॉज कंसिडर्ड टू बी सो टफ, दैट इज द बेसिक। उन्होंने कहा तुम कर लो, दुनिया की चिंता मत करो। बट लाइक आज तो ऐसा कोई हाँ कहने वाला भी होगा तो उसके लिए कोई जगह नहीं है ऐसी, सो डिफिकल्ट। एनीवे आई थिंक यहीं रुक जाते हैं, फिर हम चाय भी पी लेते हैं, फिर से बात करेंगे कुछ 8 मिनट। और किसी को कुछ इसमें करना हो, लाइक वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड, इसमें कोई मन में बात आती है बिल्कुल ओपनली तो पता होगा तो कुछ बात करेंगे, नहीं तो प्लीज़। क्योंकि सब प्रैक्टिकल और मैंने कुछ ऐसी चीज़ नहीं ली आपको, तो कहीं से भी कोई रेफरेंस एक भी रिपोर्ट नहीं किया, दैट इज द रीजन। जस्ट वांट टू लाइक सी द थिंग्स एज वी गो थ्रू देम, एज वी एक्सपीरियंस इन लाइफ। तो चाय पी लें, चलो, थैंक यू, आ जाओ।
जिसको कहना चाहिए कि हार्ट माइंड सिस्टम, ये सेंसिटिव सिस्टम है ना। पहली बात तो ये कि बहुत ऐसा उसको डिस्टिंग्विश करना बहुत शार्पली विद अ वेरी शार्प एज इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअली इसमें 4 चीज़ें जनरली मानी गई। हमारा जो क्लासिकल ये है ना अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर ह्यूमन सिस्टम, पहले तो इसको 3 लेवल ऑफ आवर लाइक एग्जिस्टेंस मानते हैं। फिजिकल एग्जिस्टेंस है हमारा, दूसरा होता है इसको बोलते हैं फिजिकल बॉडी, सेकेंड वन इज दैट सेंसिटिव सिस्टम, सटल, इट्स कॉल्ड एज सटल बॉडी, तो भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर। अब आपने पूछा इसलिए थोड़ा सा मैं वो टर्मिनोलॉजी लाना पड़ेगी मुझे, आई हैव जस्ट वांटेड टू अवॉइड इट सब, क्योंकि एनीवे और तीसरा जो फिर लेवल होता है वो उसको कहते हैं कॉजल बॉडी, कारण शरीर, जिसके कारण ये सब चीज़ें चल रही हैं। दैट इज लाइफ एक्चुअली इन शॉर्ट। अगर हम जिसके बारे में थोड़ा बहुत समझ पाते हैं वो होता है लाइफ। ये लाइफ का जब तक इनपुट रहता है तब तक ये सेंसिटिव सिस्टम भी काम करती है, फिजिकल सिस्टम भी काम करती है। जब ये चीज़ सेपरेट हो जाती है कॉजल बॉडी, तो क्या होता है वो हमको मालूम, बाकी का फिर है ना, द अदर्स डू द रेस्ट ऑफ द जॉब। तो ये जो फियर है वन ऑफ द वेरी बेसिक एलिमेंट्स, और ये दिस इज अ नेचुरल फोर्स। तो फियर कैन नेवर बी रिमूव्ड। इन फैक्ट what we need to do is we need to train ourselves to handle it. Same is the case with stress, है ना। स्ट्रेस जैसे हम वो अपन ने अभी बात की थी ना, बच्चों को स्ट्रेस आया फिर यार अब तो एग्जाम है, और वो स्ट्रेस वहाँ भी लेके गए वो सिनेमा हॉल में भी, है ना, वो दूर नहीं हो रहा था। तो स्ट्रेस को हैंडल करना सीखना है हमको। स्ट्रेस क्या होता है कि जब एक लेवल से ज्यादा हो जाता है, जब आप बियर नहीं कर सकते तो आपके लिए वो समस्या बन जाती है, इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस इज गुड, ये हमको समझाते नहीं है लोग। हमेशा स्ट्रेस को नेगेटिव कॉनोटेशन ही मिलता है। थोड़ा स्ट्रेस आना जरूरी है। अरे आप ये क्या कर रहे हो, जैसे वो छोटा बच्चा है नहीं पढ़ाई करता है, तो वेरी कॉमन थिंग, उसको क्या 2 झापड़ लगाएंगे, ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, यू ट्राइंग टू जनरेट दैट स्ट्रेस कि किसी तरह तो मोटिवेशन जनरेट हो। तो पॉजिटिव स्ट्रेस इज मोटिवेशन एक्चुअली, अंदर से कुछ करने की ललक है ना। ये ओवरबर्डन नहीं होना चाहिए, मतलब मेरी सिस्टम बियर नहीं कर सकती, अगर उस लेवल के बाहर चला गया तो फिर ये मेरे लिए समस्या है। सेम इज द केस विथ फियर। फियर गिव्स यू, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच नेचर हैज क्रिएटेड टू गिव यू प्रोटेक्शन। ऐसी कोई चीज जब आपको लगता है कि यार पता नहीं जान पे बनाएगी, नुकसान हो जाएगा, तो आपको डर पैदा होता है। तो आप इसको सप्रेस करना चाहेंगे कभी भी नहीं। लेकिन जब इसको हम रेगुलेट कर लेते हैं तो देयर इज अ बैलेंस बिटवीन करेज एंड फियर। बहुत ज्यादा डर होगा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, डर के मारे यू विल विथड्रॉ, है ना। लेकिन ऐसा भी करेज कोई काम का नहीं है कि मुझे तैरना आता नहीं है और आपसे शर्त लगा के मैं ऊपर से, ऐसी करेज क्या काम की भाई। दिस इज डेट्रीमेंटल टू अवर लाइफ। तो ये फियर करेज, ये ऐसा कॉम्बिनेशन चलता है। व्हाट वी नीड टू डू इज पुट देम इन बैलेंस। सेम इज द केस विथ, इनफैक्ट अब आपने थोड़ा सा पहले बोलते तो फिर मजा आता, टाइम खत्म होने वाला। एनीवे इट्स गुड। ऐसे ही हमारे लिए जो सिस्टम में 2 और चीजें होती हैं, काम और क्रोध, ये भी नेचर की शक्तियां हैं। व्हाट वी नीड टू डू इज regulate them. So what is the solution of the fear which is beyond the cutoff? तो एक्चुअली क्या होता है, ये योगा जो पूरा मैं बता रहा हूँ आपको, ये इस तरह से कभी हम उस पर बात नहीं करते। हम थोड़ा सा वो एस्केटिक सेंस में ही हमेशा बातें होती हैं। ये जो रियल लाइफ हमारा ह्यूमन लाइफ है, हमारा डे टू डे कोर है, डे टू डे एक्टिविटीज हैं, उसके संदर्भ में बात नहीं होती अनफॉर्चुनेटली इस तरह से। तो इसको करने के लिए मैंने एक्चुअली जवाब दे दिया है आपको, वो है बैलेंस, है ना। अब मैं एक बहुत छोटी सी चीज, सर ने भी एक सवाल पूछा था कि ये आपको कैसे मोटिवेशन मिला, है ना। तो मैंने कहा वो सब लोग साथ में बात करेंगे तो शायद सबके काम का होगा वो। ये बैलेंस जो होता है ये ऐसे समझ में नहीं आता है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? आई विल गिव यू अ वेरी कॉन्क्रीट एग्जांपल जो हम सबके लिए, ऑलमोस्ट सबके लिए कॉमन है। हम लोगों में से कितने ऐसे हैं जो साइकिल चला सकते हैं, 2 व्हीलर बैलेंस कर सकते हैं? हाथ उठाओ। सो ऑल ऑफ अस,
है ना। अब मैं जब ये अगर सवाल करूं कि आप अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मुझे नहीं आता है, आई हैव जॉइंड योर क्लासेस, है ना, अब साइकिल सीखना, अब मैं कहूँगा चलो मुझे आप साइकिल बैलेंस करना सिखाओ, बताओ मुझे 1 घंटे का लेक्चर दो, कौन देगा सर? अब थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट बन जाएगी, हैं अभी नो कोऑर्डिनेटर ही है इंक्लूडिंग मी, तो क्या बताएंगे आप? कुछ बताइए अदिति। सर लेक्चर नहीं देंगे, मतलब प्रैक्टिकली क्यों नहीं दोगे लेक्चर? सिखाओगे नहीं, हम कैसे सीखेंगे भाई? कहेंगे बहुत इजी है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जीवन में, है ना, हर चीज लेसन से नहीं सीखी जाती है। ये जो आप बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं, कैसे सीखा फिर हमने? वेरी वेरी सिंपल सॉल्यूशन, वेरी भाई इसने बोलता पता है क्या बेटा, आप प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस 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 करना पड़ेगी। सही चीज की प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और एक मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अब इसी में वो मोहित सर के इसका भी थोड़ा सा वो मैं ऐड करता हूँ, तो वेरी इंटरेस्टिंग कि थोड़ा सा इसको अपन और एलाबोरेट करता हूँ मैं। जो साइकिल चलाना हमने सीखा सबने, हाँ, थोड़ा सा अपन लेट अस ट्रैवल इनटू पास्ट। तो बहुत छोटे रहते हैं हम, चलो साइकिल चलाना सीखना है, साइकिल पे बैठ गए, है ना। जैसे साइकिल पे बैठे तो सब मुझे बताओ इस चीज़ से एग्री करेंगे कि नहीं कि पूरा का पूरा ध्यान कहाँ रहता है जब हम साइकिल पे बैठते हैं पहली बार? तो कि पीछे जो किसी ने पकड़ा हुआ है कि नहीं, सपोर्ट है कि नहीं। आपको बोलते हैं ये खड़ी 2 पहिए की साइकिल, चलो बैठ जाओ इस पे, बैठोगे? मतलब जिसको नहीं आता, हाँ, तो क्या होता है थोड़ा सा इसको मैं करता हूँ, देखो आप अलग बताओ। तो उसमें पूरा ध्यान रहता है, उसको बोला नहीं भाई सामने देखना पड़ेगा तुमको, हैंडल पर थोड़ा सा एक ये रखो, सीधा रखो, क्योंकि क्या है हमारे हाथ में? कंट्रोल, हैंडल है, ब्रेक है और पेडलिंग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो बहुत बड़ा लेसन तो है नहीं, इतने सारे पैरामीटर्स हैं, फिर कॉम्प्लिकेटेड उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन और ये बनाओगे और तब जाके फिर सोल्यूशन मिलेगा। है ही नहीं कुछ करने को ज़्यादा, है ना। इससे भी बढ़िया एग्जाम्पल होता है, समय नहीं है, नहीं तो आपने सर पहले नहीं पूछा, मैं तैरने का एग्जाम्पल देता आपका तो बहुत मज़ा आ जाता। एनीवे, यही बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो पूरा ध्यान रहता है पीछे। अब क्या होता है प्रोसेस देखिए आप, जब वो बैठते हैं पकड़ के तो रखते हैं थोड़ी देर, अब उसको सिखाना तो है, तो क्या सिखाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? थोड़ी देर छोड़ना पड़ता है, और फिर हमारे क्या हाल होते हैं कोहनियाँ, घुटने सब छिल जाते हैं, होता है। अब हमारी हालत और खराब, डर थोड़ा सा बढ़ता तो है, लेकिन हम हिम्मत दिलाते हैं, नहीं मैं अब नहीं छोड़ेंगे बेटा, वो झूठ भी बोलना पड़ता है थोड़ा सा, सब तरकीब अपनाते हैं। फिर बैठता है वो, फिर चलाया, इस बार पता चला पूरा राउंड लगा दिया, छोड़ा ही नहीं, मतलब लाइक दिस, आई मीन यू प्ले सम ट्रिक्स टू ट्रेन। फिर और धीरे धीरे क्या होता है, देयर इज अ डे जब गाड़ी चलती है उसको थोड़ा सा लगता है कि यार पीछे से अब, बट आई कुड ड्राइव इट। अब आप देखो उस समय देखना आपकी हालत, अपने को एकदम से खुशी होने लगती है, वो डर जो है अब वो खुशी में बदल जाता है। इज इट नॉट ट्रू? अब तो और घर में अगर 2 भाई बहन है, साइकिल एक है, हम उम्र है, तो फिर झगड़ा होने लगता है थोड़ी देर में, पहले जहां बैठने में डर लग रहा था आपको, अब इट स्टार्ट्स गिविंग यू जॉय। सीख लिया आपने बैलेंस करना। तो क्या सीखा अभी भी नहीं बता सकता, ना मैं बता सकता हूँ ना आप बता सकते हैं। बताने वाली चीज थोड़ी है, करने वाली चीज है, सीखने वाली चीज है। और एक स्टेप और, ये प्रैक्टिकल चीज कैसे होती? सर ये किसने पूछा था? सर कहाँ गए? नहीं वो सर कहाँ गए जिन्होंने पूछा कि आपको कैसे वो चले गए शायद उठ के। एनीवे डजंट मैटर। तो अब आज अगर मुझे साइकिल से जाना हो कहीं या एनी 2 व्हीलर, मैं घर से निकलता हूँ, राजवाड़ा जाके काम करके वापस आ जाता हूँ, मैंने क्या क्या किया बीच में मुझे कुछ भी ख्याल नहीं। आप पूछोगे आपने साइकिल चलाई मतलब क्या किया? यू आर टोटली फोकस्ड ऑन द टास्क। आपने टास्क किया, साइकिल वाइकिल तो
आपके लिए अब देयर इज नो जॉय। आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इसमें रिस्क भी रहती है। जब सीख लेते हैं ना सर, यू हैव टू ट्रांसेंड प्लेजर। दिस इज मोर रिफाइंड स्टेट ऑफ बीइंग। प्लेजर भी चला जाता, लेकिन डर भी तो चला गया आपका। अब नहीं डरोगे आप, ट्रांसेंड कर लिया आपने, एंड दैट इज हाउ यू एक्वायर दैट बैलेंस। और उस बिकम्स मतलब योर सेकंड नेचर। अब आप सोचना नहीं पड़ता है उसके लिए। अच्छा बुरा की भी बात नहीं है। वंस यू एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन, डू इट, कि हाँ इसको यूज करना है। ये आपके लिए यूज करना, ऐसा माइंड हार्ट सिस्टम आपका, आप अपनी मर्जी से यूज कर पाएंगे। यू विल नॉट बी कंपेल्ड। A very, very great achievement. Very great achievement. Not out of compulsion you do. You are no more slave of your internal system. That is what is called as mastery. और mastery हो जाती है तो क्या करते हैं? You start using it for good. Your own good and everybody else's good. आप यूज करने लायक हो जाते हैं उसको। अभी तो यूज ही करना ही नहीं सीखते हैं, मतलब सीखा। ये जो आप बता रहे हैं, ये ऐसा प्रैक्टिकल, एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट विच आई वांटेड टू हाईलाइट। दिस इज हाउ इट हैपेंस। क्या करोगे आप उसके लिए? उसके लिए द बिगिनिंग इज ध्यान। ये लोग हमको बताते नहीं है ऐसा। हमको लगता है पता नहीं ध्यान मतलब कोई ऐसी चीज होगी, बड़े बड़े बाल, और जब तक ये नहीं होगा और ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, खाएंगे पिएंगे नहीं, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तभी जाके शायद हम इस लायक बनेंगे। वो सर ने पूछा था मुझसे कि आपने, मैंने जब देखा ये अपने खुद, एंड दिस आई एम टेलिंग यू विद 100% श्योरिटी दैट इट वर्क्स। इसलिए मैं आपके सामने ये इट डज वर्क। और इसमें इंजीनियरिंग अप्रोच, इसको मैं इंजीनियरिंग अप्रोच ही बोलता हूँ, क्योंकि जैन साहब हमको आएंगे वो बोर्ड पे और बहुत सारी इतनी सारी इक्वेशन, और आपको अगर समझ लो डीएसपी और फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये वो सब बोर्ड पूरा वाइट हो गया, ग्रीन पे, तो आप सीख गए वो चीज़। यहाँ बैठे नोट्स बना लिए, बोर्ड पे सब हो गया, बड़ी बड़ी इक्वेशन, डेरिवेशंस, ये वो सब ग्राफ्स सीख गए। कैसे सीखते हैं हम? वो जो चीज़ है, हाउ, यस, वेयर? इन द लैब। लैब में हम एक्चुअली जब उस थ्योरी को यूज करके, वो जो भी बताया था, हम जब कुछ करते हैं, एंड व्हेन इट मैचेस विद द सेम, द ग्राफ पैटर्न मैचेस दोज वैल्यूज, वो जो टेबल है आपकी सब, उसमें जितनी रीडिंग्स वगैरह हैं, उसके बाद वो जब मैच करती हैं, तब आपको दिल में भरोसा होता है। तब आप किसी को बोल सकते हैं कि नहीं, इट वर्क्स लाइक दिस, दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज हाउ द करंट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज आर रिलेटेड। ऐसे आप किसी को बोल सकते हैं, क्योंकि आपने करके देखा, इट डज वर्क। मेरा ऐसा मानना है कि सिस्टम बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीज होती है, समथिंग विच वर्क्स फॉर यू एंड विच यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ। बस एक ही चीज थोड़ी सी इसमें और ऐड करूंगा लास्ट, फिर देन विल कम टू दैट द प्रैक्टिस। कुछ अपन करेंगे थोड़ा सा। इन नेचर ये दिस इज अ ग्रोथ प्रोसेस। फिजिकल बॉडी का एक ग्रोथ प्रोसेस होता है, ऐसे ही हमारा इंटेलेक्ट का है ना, हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, ठीक है, इन सब का एक ग्रोथ प्रोसेस होता है। आप सोचेंगे कि ये कल मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, कल समझदार हो जाए, ऐसा नहीं होता है। साइकिल भी 15 मिनट में सीखेंगे क्या? मतलब प्रैक्टिस कितना करना पड़ेगा जब तक आपको खुद पे पता न लग जाए। इट इज सच ए सिंपल थिंग। अच्छा, इसमें कोई मीटर डायरेक्ट, दिस इज डायरेक्ट परसेप्शन। अभी मुझे खूब तेज प्यास लगी है, ठीक है, तो जो सीखा हुआ है ना मैंने, उसमें वो सीखा हुआ ये था कि पानी से प्यास। अच्छा, इट इज सो इंटरेस्टिंग कि आप मेरे पसंद की बहुत सारी मिठाई और ये कचौरी समोसे और सब है ना, 56 दुकान और सब कुछ भी पेश करेंगे तो काम नहीं आएगा। अगर मुझे बहुत तेज प्यास लगी, आप बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें पकवान खिलाएंगे, इट विल नॉट satisfy my thirst. Why? अच्छा, और मुझे ये बताइए कि ये पानी ने किया क्या आपके लिए? क्या सीखा आपने? क्या ऐसा उसके बारे में मालूम है आपको? कौन? कुछ भी नहीं मालूम हमें, कुछ भी नहीं मालूम कि पानी जाने से होता क्या है अंदर।
कुछ भी नहीं पता, बट देन यू गेट अ सिग्नल, यस दैट योर थर्स्ट हैज बीन क्वेंच्ड। कितना पीना है, कोई वो रखते हो क्या केमिस्ट्री लैब का वो, हाँ ग्रेजुएटेड ये कि इतना 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 ऐसे ऐसे करना, नो किससे पूछेंगे हम, क्यों पूछेंगे? मैं तो ये मैं कहता हूँ क्यों पूछेंगे? वी विल सी आवर ओन कंडीशन, इट्स सच अ सिंपल थिंग। फाइन, चलिए, थैंक यू सर, यू रेज्ड अ वेरी नाइस, और मतलब कुछ चीज़ें आ गई वो जो इंटरेस्टिंग थी। तो अब ये तो खत्म करते हैं थ्योरी, थोड़ा सा हार्टफुल में बहुत सिंपल जल्दी जल्दी करता हूँ। ये बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, एवरीबडी कैन डू, इफ आई कैन डू इट यू कैन सर्टनली डू इट बेटर देन मी। और फैमिली लाइफ के साथ में है, किसी कोई चीज़ आपको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो आप निभाते हुए इसको कर सकते हैं। एंड दिस आई हैव ऑल वेरीफाइड, मैं आपको बिल्कुल विद फुल कॉन्फिडेंस कह रहा हूँ, जो भी लिखा है मैंने ये अपने से लिखा है अनुभव से। ये एक बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज एडेड बाय ट्रांसमिशन और ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं आपको मतलब ये फिर इंस्ट्रक्शन ही रह जाएगा ना सब कुछ, क्या कुछ हेल्प अवेलेबल है इसमें? जैसे मैंने कहा था शुरुआत में, इफ यू कैन रिकॉल, टीचर प्लेस एन एक्टिव रोल इन दी क्लासरूम। पढ़ाता वही है, जो चीज़ें पहले से एस्टेब्लिश्ड हैं, जो लॉज, जो थ्योरम्स, जो कॉन्सेप्ट, सब वही चीज़ें पढ़ रहे। देन व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर? रोल ऑफ द टीचर इज the teacher makes your journey easier, saves time and labor। केवल टीचर का इतना सा रोल, आपकी चीजें आसान बनाता है। ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। दैट इज द रोल हियर, टीचर इज दिस। ये आपको हेल्प अवेलेबल है इस सिस्टम में, एंड दिस बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस आई एम सेइंग यू विद फुल गारंटी। हार्टफुलनेस की बात मैं इसलिए कर सकता, बाकी चीज़ों की नहीं कर सकता, इसकी जरूर कर सकता। यस, दिस इज देयर। वन ऑफ द रीजंस इज लाइक आई एम ऑल्सो अ ट्रेनर, एंड लाइक आई हैव दैट परमिशन टू गिव दैट ट्रांसमिशन, शेयर विथ यू, और उसका यूज़, उसका क्या प्रोसेस होता है वो अपन लाइक एनी टाइम दोज हु आर इंटरेस्टेड अपन कर सकते हैं। एंड जैसा मैंने अभी पहले से बता दिया कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नॉट ऑन डॉगमास। केवल एक कुछ मान्यता या वो वाली बात नहीं है, इट इज जस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस। आप भी करके देखिए, आपका दिल कहे, आपको लगे कि यस इट इज यूजफुल, कंटिन्यू विद इट। छोड़ देंगे आपको नहीं, अगर कुछ ऐसा लगता है कि नहीं मेरे काम का नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। दिस आई कैन गिव यू इन राइटिंग, नुकसान कुछ भी नहीं है। तो एटलीस्ट लाइक एवरीबडी आई वुड रिकमेंड कि एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही शायद करके देखें, लेकिन थोड़ा करना पड़ता है। कोई भी चीज़ नेचर में अगर वो रियली ये है तो इट इज़ ग्रेजुअल, इसमें चेंज थोड़ा ग्रेजुअल आता है। कोई भी चीज़ ऐसी एकदम से नहीं हो जाती, अब एकदम से बड़े नहीं हो सकते, एकदम से अपना पूरा सिस्टम ट्रांसफॉर्म नहीं होता। दिस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स लिटिल टाइम, ठीक है। और सबसे बढ़िया तो ये करने के लिए देयर इज़ नो फीस, बिल्कुल फ्री है। और इसकी कुछ प्रैक्टिसेस हैं, तो अब मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा इस पर बोलता नहीं। रिलैक्सेशन कभी भी कोई भी यूज़ कर सकता है, जब भी आप थोड़ा सा हैवीनेस, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, कभी पढ़ाई के लिए बैठना आपको मन नहीं लग रहा है, रिलैक्सेशन कर लीजिए, फिर बैठ जाइए। फिर दी रियल प्रैक्टिस स्टार्ट्स फ्रॉम मेडिटेशन, उसके बाद रिविजनेशन या क्लीनिंग। जैसे अगर मैंने क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम बताया था आपको कि इम्प्रेशंस लीडिंग टू कंपल्शन, जो हमने ये इम्प्रेशंस जो है, अगर मैं रोज की सफाई कर लूँ, जैसा हम रोज नहाते हैं, वैसा अगर मेरा मन का स्नान भी हो जाए शाम को, तो बहुत सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होने से बच जाती हैं। और धीरे धीरे लाइक व्हेन योर विल पावर इज ट्रेन्ड ग्रेजुअली, तो और भी डीपर लेवल पे भी इसका इम्पैक्ट होता है। आई मीन दैट इज समथिंग विच एवरीवन हैज़ टू हैव हिज और हर ओन एक्सपीरियंस। तो ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज करने में ये नहीं है। और प्रेयर तो हमें करना ही पड़ती है ना, मतलब उसके बिना हमारा काम चलता नहीं है। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स विद आवर लिमिटेड कैपेसिटीज़। और अगर कुछ और आपको खुद के इस पर देखना हो तो ये कुछ लिंक्स हैं, heartfulness.org, उस पर भी आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी।
और हार्टफुलनेस ऐप भी इस पर अवेलेबल है, वो भी आजकल ये अभी मॉडर्न सब चीज़ें हो गई हैं, तो थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी इसकी, ठीक है। अब नाउ लेट अस कम डाउन टू द टाइम, हमारे पास इतना, अपन विल गो थ्रू अ प्रैक्टिकल सेशन, ठीक है। तो 15-20 मिनट करें ध्यान सब लोग। यस नॉट डिमांड समथिंग वेरी बिग, जस्ट लाइक लिटिल टाइम। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये अगर टाइम हम देने लगे, धीरे धीरे एडजस्ट होता है, वो एकदम से कुछ भी चीज़ नहीं होती, नया कुछ भी बहुत मुश्किल होता है आजकल की लाइफ में। अब किसी को भी कहो कि 15 मिनट, तो उसको बड़ा टेंशन होता है कि पता नहीं कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे। बट देन इफ़ यू कैन मैनेज इट, स्टार्ट इट लिटिल बिट, और थोड़ा सा देखिए, फिर आपको अगर उसका फ़ायदा लगने लग जाएगा तो खुद ही हो जाता है। जब इंटरेस्ट और फ़ायदा होता है तो चीज़ें अपने आप होती हैं, फिर किसी को कहना नहीं पड़ता है। तो आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग कि इसमें, लेकिन जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, ठीक। एक्चुअली इसमें 3 सेशंस होते हैं फॉर्मली, जब आप फिर खुद घर पे प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी के इसमें प्रोग्राम शेड्यूल में वी डोंट हैव दैट मच ऑफ स्पेस, एक ही है। लेकिन इफ़ एनीबडी विशेस कि थोड़ा सा और अगर आगे कुछ करना चाहें तो या तो ये साइट के थ्रू कर सकते हैं, एंड इफ़ यू विश आई कैन शेयर योर नंबर। आपके ये जो HOD थे इसी के अभी, शेखर शर्मा जी, वो भी करते हैं, ही इज़ ऑल्सो अ ट्रेनर, डेजिग्नेटेड ट्रेनर है, उनसे आप संपर्क कर लीजिए, मुझे कर सकते हैं, कभी कॉन्टेक्ट करना चाहें तो अपन और इसको आगे कर सकते हैं। तो अभी लाइक जस्ट एक कंफर्टेबल पोजीशन है, बिल्कुल टेंशन वेंशन नहीं, बिल्कुल आराम से जैसे बैठते हैं हम लोग, है ना। बट लिटिल थोड़ा सा एकदम ऐसा भी नहीं है आराम, थोड़ा सा हम जैसे कंफर्टेबल पोजीशन जिसको बोलते हैं। बैक थोड़ा सा हमारा, यू कैन टेक रेस्ट, उसमें कोई इशू नहीं है, बैक को यू कैन कीप इट इन रेस्ट। और पहले हम आई गिव सम इंस्ट्रक्शंस। तो पहला फेज कुछ कपल ऑफ मिनट्स वो रहेगा रिलैक्सेशन, देन आई आस्क यू, थोड़ा सुन लीजिए क्योंकि वो थोड़ा सा प्रोसीजर वो आपको पता होना चाहिए, इट्स एक्सट्रीमली सिंपल। लेकिन जैसे वो साइकिल के लिए थोड़ी इंस्ट्रक्शन तो लगती है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट देयर इज ब्रेक, और लाइक वी हैव टू पैडलिंग इन विच डायरेक्शन, है ना, थोड़ा हैंडल को संभालना पड़ता है वगैरह वगैरह, जैसे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत सिंपल है। तो रिलैक्सेशन के लिए तो आई स्पीक आउट दी इंस्ट्रक्शंस, तो वैसा वैसा आप लोग उसको बस जस्ट एक वैसे ही थॉट लेना है, वैसे फील करना है हमको अपने लिए, तो वो हो जाएगा रिलैक्सेशन। आफ्टर रिलैक्सेशन आई विल से दैट नाउ वी विल स्टार्ट विद मेडिटेशन, ठीक है। और मेडिटेशन के लिए इट इज़ हार्ट बेस्ड मेडिटेशन, और हम एक सपोजिशन लेते हैं, जस्ट एक ख्याल है, एक विचार है ना, कि देयर इज डिवाइन लाइट प्रेजेंट इन आवर हार्ट, हमारे हृदय में दिव्य प्रकाश मौजूद है, इनफैक्ट सोर्स ऑफ डिवाइन लाइट। हमको स्पेशल कॉशन कि लाइट को हमको किसी भी तरह की इमेजिनेशन में नहीं बांधना है, इट इज समथिंग इलस्ट्रस, इट हैज अ शेप ऑफ फ्लेम और नथिंग, जस्ट जो दिल धड़काने वाली चीज़ तो है ही अंदर में, इसमें कौन बहाना करेगा, जो भी वो सोर्स है हमारा वो कर रहा है। तो उसको केवल हम नाम नहीं दे पाते, हम क्या क्या कहें उसको, आपको जो समझ में आ जाए। मैथमेटिशियंस लोग एक्स भी कहना चाहेंगे कि वेरिएबल एक्स है, उसकी वैल्यू जब सही पता चल जाएगी तो उसको आप तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे ये चीज़। तो इसलिए केवल डिवाइन लाइट, दिव्य प्रकाश, ये वाला भी नहीं, डिवाइन कहा है उसको इसलिए, तो इट इज़ देयर एंड हम उस तरफ मुड़ जाएंगे फॉर द टाइम बीइंग। अभी हमारे पास दिस इज़ द टास्क विच वी टेक अप, कि हम अभी बाकी चीज़ों से रिलीव होके हम उसके साथ में रहना चाहते हैं, एंड दिस इज द ओनली एक्सरसाइज, बिलीव मी, इट इज सच अ सिंपल थिंग कि अब बस हम उसके साथ में हैं। रादर थोड़ा सा ये कर लें कि वो हम ऑटोमेटिकली वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, गेटिंग एब्जॉर्ब इनटू दैट ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इतना ही हमें करना है। अब होता है इसमें केवल एक चीज़ है कि जब हम ऐसा बिल्कुल रिलैक्स वे में करना है, हमको फोकस नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार लाइक द टर्म ध्यान इज अंडरस्टूड एज फोकस, एकाग्रता जिसको बोलते हैं, ध्यान लगाना है हमें, ऐसा लगता है, तो कहीं इधर उधर के विचार नहीं आना चाहिए वगैरह, नथिंग, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस डिवाइन लाइट, बट जस्ट डूइंग एन एक्सरसाइज, है ना, विद अ वेरी रिलैक्स्ड माइंड, बिल्कुल प्रेशर नहीं है किसी भी तरह का, रिलैक्स माइंड के साथ में हम जस्ट वी वांट टू बी विथ इट, वी आर रादर डायरेक्ट लाइक एब्जॉर्ब, वो हमें अट्रैक्ट कर रही है और हम उसमें एब्जॉर्ब नहीं, ये फील रखना है। मन में अगर ऐसे कोई आपके थॉट्स उठते हैं, किसी भी तरह के विचार हों, अभी हमें क्या करना है, उनसे लड़ाई नहीं करना है। विचार नहीं आना, ये क्यों, क्या आ गया, बिल्कुल हमको लड़ाई नहीं करना है, हमें क्या करना है,
उनको इग्नोर करना है. अभी वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दोज थॉट्स. ये हमारे मालवी भाषा में उसको कहते हैं कि उसको घास नहीं डालना है अभी, है ना, तो ऐसा बोलते हैं. क्योंकि एक ही चीज़ हमारे लिए अभी काम की है, अभी हमने ये लिया हुआ है, बाकी चीज़ों के बारे में वी जस्ट डोंट वरी. सो जो ये हमारे थॉट्स उठ रहे हैं, ये भी हमारी मर्जी से उठ रहे हैं क्या? नो. हमने तो वो एक्सरसाइज ली है, फिर वहाँ मन में स्थिर हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होता, ये उठ रहे हैं. ये भी कुछ बात है इसके पीछे, मतलब. तो वी डोंट ट्रीट देम आवर्स, हम कहते हैं इसको जाने दो, जस्ट इग्नोर करते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है. और ऐसे ही कंफर्टेबली हम थोड़ी देर बैठेंगे, 15-20 मिनट जितना भी है. देन आई विल गिव एन इंस्ट्रक्शन, दैट्स ऑल, कि अब खत्म करें. उस समय थोड़ा सा एक चीज़ कीजिएगा कि डोंट ओपन अप योर आईज इमीडिएटली, है ना. थोड़ा सा स्टेट ऑफ बीइंग जो भी आपका है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें. ट्राई टू फील अभी क्या कंडीशन है, और ध्यान के बाद में मेरी क्या इंटरनल कंडीशन रहती है, ठीक है. इफ़ लाइक और इंटरेस्टेड कुछ हम उसमें फिर शायद बात भी कर पाएंगे, कुछ इंटरेक्ट करेंगे कुछ. सो वी स्टार्ट विद दैट एक्सरसाइज. सो कंफर्टेबल हो जाइए, जैसा भी आप हाथ रखना चाहें हैंडल पे, अपने यहाँ या लैप पे, लाइक बी कंफर्टेबल सो दैट बॉडीली डिस्टर्बेंस इज मिनिमम. और एडजस्ट भी कर सकते हैं बीच में, ऐसा कुछ नहीं कि बिल्कुल ऐसा योगी जैसा अपने को वैसा बैठना है. आप थोड़ा बहुत हिल के, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कर लिया, तो कोई उसमें ऐसी बात नहीं है, ठीक है. तो पहले हम फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स विल डू रिलैक्सेशन एंड देन विल स्लिप इनटू मेडिटेशन. ओके, सो प्लीज जेंटली क्लोज योर आईज. सब अपनी आंखें आहिस्ता से बंद कर लीजिए. बॉडी को एक कंफर्टेबल पोजीशन में ले आए ताकि हम आराम से बैठे रह सकें. इट इज़ बेटर लाइक इफ यू कैन स्विच ऑफ अवर मोबाइल्स प्लीज़. थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के दूसरों को भी होगा, अगर इतना सा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा. सॉरी आई डिड नॉट गिव दैट इंस्ट्रक्शन बिफोर हैंड. Fine. So please gently close your eyes. Be comfortable. अब आप assume कीजिए कि धरती से स्वास्थ्यदायी ऊर्जा, that re-energizing force is flowing from our foot upwards. हमारे पैरों से जमीन में से होकर हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है. हमारे पैर, हमारी एंकल्स रिलैक्स हो रहे हैं. यही ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है. घुटनों से घुटनों के बीच हमारी काफ मसल्स, हमारे नी को रिलैक्स कर रही है. इमेजिन कि ये ऊर्जा अब ऊपर की ओर जा रही है. और घुटनों से ऊपर, हमारे इस कमर से नीचे हमारा जो शरीर है वो रिलैक्स पोजीशन में है. टेंशन दूर हो रहा है एंड दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज गेटिंग रिलैक्स्ड. सिंपल एक्सरसाइज जो भी जिसको लगा कोई बता सकता है कि और रेस्पॉन्सेज आ जाएंगे. क्या जो भी जो ऑब्जर्वेशन आपने बिल्कुल मुझे अच्छा बुरा ये मतलब आपने जो भी आपको लगा बस आप वैसा का वैसा करेक्ट कर. सर जब इनिशियली रिलैक्सेशन हो रहा था, जब आपने माइंड रिलैक्स की बात की बैक साइड में, तो एकदम ऐसा कूल ब्रीज जैसा ऐसा फील हुआ, एकदम शरीर तो ऐसा फील हुआ कि एकदम से कुछ जी. दैट वाज माय फर्स्ट रियलाइजेशन. एंड
towards end of the meditation? So thoughts तो कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि many thoughts, roles and responsibilities याद आ रही थी, तो वो एकदम कोशिश हो रही थी कि बार-बार उधर जा रहे थे, नहीं, we have to focus on that. So that was. But how did you feel at that? Like just Relax. relax. Anybody else? क्या अदिति का क्या नाम? तुम्हारा ही नाम याद है मुझे। बोलो। सर ऐसे कोई ज़्यादा थॉट्स तो आए नहीं, रिलैक्सिंग लगा और बाकी थोड़ा सा मतलब जैसे माइंड एम्प्टी था तो अच्छा लगा। Yes, बेटा please. It feels like a lot of times हम unconsciously बहुत सारी बातों के बारे में सोच रहे होते हैं at the back of our mind जो disturb करती है अपनी thinking को, तो after the meditation it feels like वो चीज़ subdue होती है and you are more aware of your surroundings and in the present. I would say little freshness, थोड़ा सा. Yes. Good. ऑपोजिट लगा इसका वो भी बात कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। क्योंकि पहली बार साइकिल पे बैठते हैं तो पहले राइड में तो कोई भी नहीं सीखता है, वो मतलब देयर इज लॉट ऑफ चांस कि हम गिर जाए। ओके, एक दो मिनट और लाइटनेस लगी। माइंड विद द इवनिंग क्लीनिंग, तो शाम को हम क्लीन होके फिर रात प्रेयर करके सोते हैं, फिर सुबह उठ के थोड़ी देर जितना अपने से। अच्छा, दूसरा ये कि इट्स नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट, कोई ऐसा इसमें मिलिट्री रूल डजंट वर्क। हम अपना नॉर्मल ड्यूटीज़ निभाते हुए और सब करते हुए वैसा बिल्कुल नॉर्मल, कभी कुछ स्किप हो गया, जितनी देर हुआ नहीं हुआ, ऐसा कोई बंधन नहीं। जितना अपन कर सके उतना शामिल करना चाहिए, दिस इज़ दी सजेशन। और फिर खुद एक्सपीरियंस कीजिएगा, क्योंकि उसके बिना कोई मतलब, मैं कहूँ इतनी बड़ी बड़ी बात, उसका कोई मतलब नहीं होता। जब तक हमारा फर्स्ट हैंड अगर कुछ फील नहीं है, कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो इट डजंट हैव एनी मीनिंग। So continue it. You don't have to pay any fee, and you have to only invest little bit of. And I'm saying investing, not spending. See it, थोड़ा सा करके देखिए. It's little investment of your own time, and see the change. थोड़ा सा करना पड़ता है। मैंने जैसे कहा कि कोई भी प्रकृति में, नेचर में कोई भी चीज़ ऐसा abruptly change नहीं आता। The always any growth process of change is gradual. थोड़ा धीरे धीरे होता है और होना भी चाहिए। करके देखिए, ठीक है? Anybody else would like to make any comment or share observation? सर, आपने नहीं कुछ बताया, आपने सवाल तो बड़ा अच्छा पूछा। कुछ जो मेडिटेशन के बारे में आपने अभी जो प्रैक्टिस जो करवाई, तो मेरे को ऐसा थोड़ा सा डिटैचमेंट थोड़ा सा फील हुआ कि मतलब ओके, आसपास की जो कई बार सारे था, इसके बाद लेक्चर है, हाँ ठीक है लेक्चर ले लेंगे, डिटैचमेंट थोड़ा सा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। The thoughts did not disturb. Correct. Disturbance नहीं create हुआ, thoughts हो सकते हैं। चलिए बस मुझे तो इतना क्लियर करने का था। हाँ जी प्लीज जरूर जरूर। रिलैक्सेशन के टाइम तो थॉट नहीं आते हैं, अच्छा भी लगता है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन जैसे काफ़ी देर तक आंखें बंद करके बैठने में चक्कर से फील होता है। मुझे प्रॉब्लम भी है वर्टाइगो की, इसलिए थोड़ा सा लगता है तो अच्छा, एक चीज़ अपन जैसे बात करें कि आंखें बंद की, हमने कहा कि भाई डिवाइन लाइट, मतलब एक तरह से थोड़ा सा थोड़ी देर माइंड को कह रहे चुप बैठ जाओ, इतना ही कर रहे हैं ना वैसे देखा जाए तो वो तो फिर हुआ क्यों नहीं? आपका ही माइंड है, नहीं इन्होंने कुछ कहा, नहीं हमने भी कुछ नहीं कहा, आपका चुप हो जाना चाहिए। अंदर से सब फील होता है कि चक्कर आ रहा है, कुछ हो रहा है। तो ये मतलब क्या है कि अभी इट्स नॉट रेगुलेटेड, इट्स एक्टिविटी इज नॉट रेगुलेटेड। अभी माइंड को मैंने इंस्ट्रक्शन था कि चुप हो जाओ, अभी तो हो जाना चाहिए था। अभी पढ़ना है तो पढ़ाई में लगना, जो हमने बात की थी, फिर उसको सिनेमा में क्यों जाना है? अरे सिनेमा में चले गए तो वहाँ लग जाता, फिर पढ़ाई पे क्यों आ गया? फिर इक्वेशंस और सब वो सब थ्योरम्स याद आने लगे वहाँ स्क्रीन पे। व्हाई सो? इट्स एक्टिविटी इज नॉट रेगुलेटेड, इट्स बैलेंस्ड। खत्म नहीं होता इसमें, देयर इज नो सप्रेशन। सोचने की जो प्रोसेस है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि हमें लगता है कि बिल्कुल थॉटलेसनेस
आ जाना चाहिए, आ जाए कोई बात नहीं अपने आप, लेकिन हम उसको ऐसा प्रेशराइज नहीं करते माइंड टू एम्प्टी इट फ्रॉम थॉट्स. नो, दी थॉट प्रोसेस, ये तो सब प्रोसेस बनी हुई है ना. विचार शक्ति तो मनुष्य को बाकी सब प्राणियों से, मतलब लाइफ फॉर्म से अलग करती है, द इंटेलेक्ट. तो उसकी एक्टिविटी रेगुलेटेड होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए. और क्या कंस्ट्रक्टिव है, क्या पॉजिटिव है, किसी को बताने की जरूरत नहीं. छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सब जानते हैं, अपने दिल में झांकने की जरूरत है बस. प्रॉब्लम कहाँ आता है कि वो दिल साथ नहीं देता है. टेबल पे बैठे दोस्त याद आते हैं, मूवी याद आती है, पार्टी याद आती है, मतलब वॉट एवर इट इज. अभी मोबाइल की जरूरत नहीं है, इतनी देर तो चला ना जीवन, आराम से नहीं था मोबाइल, लेकिन अभी जग जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी देर में अब ये प्रॉब्लम है. और ये आदत बन जाती है. आई मीन दिस मोबाइल, हमारी तो लाइफ कितनी सारी गुजर गई मोबाइल था नहीं, लेकिन आज अब वो आदत बन गई. वो सर कह रहे थे डर लगने लगता है मोबाइल छूट जाएगा तो लगेगा कि पता नहीं अब क्या होगा हमारा. इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट, है ना, इतना ग्रिप हो गया हमारे से. तो सिंपल प्रैक्टिस एंड कैन बी डन बाय एनीवन, कोई उसमें ऐसा ये नहीं है. और कुछ ऐसे डूज डोंट्स इस तरह से नहीं है कि ये मत करो, ये मत खाओ, ये सब नॉर्मल ड्यूटीज आपकी निभाइए, सब कर सकते. ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. I would like challenge her to. I request Mugdha ma'am to give away a memento to Sanjay.